શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય વિરચિત નિયમસારજી પરમાગમ, એમાં પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ અધિકાર, અને એમાં પહેલી 5 જેને રત્નરૂપની ગાથા કીધી એની હવે આપણે પૂર્ણાવૃત્તિમાં આપણે પહોંચીએ છીએ. ગુજરાતીમાં 152 નંબરનું પાનું છે. બધાની વાત પૂરી કરીને છેલ્લે હવે શું કહે છે કે અહીં ટીકામાં જેમ કર્તા વિશે વર્ણન કર્યું એમ કારયતા અને અનુમંતા અને અનુમોદન, અને હજી એક બીજો શું છે એમાં લખ્યું નથી પણ સાથે શું મેળવી દેવું, કારણ. કારણ કે ટીકામાં મૂળ ગાથામાં 5 ગાથામાં 2માં કારણ છે, બાકી એ બધાને એપ્લાય થઈ શકે છે. અને એક ફરીથી વિચારી લો, જ્યાં એક અભાવ શબ્દ આવે ને, અભાવ ન હોવાપણું, એનો અર્થ શું થયો? અભાવમાં સમજી જ લેવું, કરતા નથી, ભોગતા નથી, સ્વામી નથી, તન્મય નથી, તદ્રૂપ નથી, એ બધું જ કારણ નથી, બધા જ સમજી લેવા. એક જ અભાવમાં આ બધું સાથે ઇમ્પ્લાઇડ હોય છે, ભિન્નતા, અભાવ. અને એટલા માટે અભાવ શીખવા જેવું. આપણે શું શીખવા જેવું છે? ભાવ શીખવા જેવું કે અભાવ શીખવા જેવું? બંને. અરે પણ ભાઈ, બે શીખવા જેવું છે. કારણ કે હું સ્વથી છું અને પરથી નથી, બે છે વસ્તુનો સ્વભાવ. અસ્થિ નાસ્તિ બે છે એમાં, અને તો જ તને ભેદજ્ઞાનની ધારા થશે. ખાલી હું છું એમ કરીશ તો બીજા સાથેનું એકત્વ સિદ્ધ થઈ જશે, પણ હું સ્વથી છું અને પરથી નથી. કોઈને એમ કહીએ કે આત્મા નથી એમ કહીએ તો એ સ્ટેટમેન્ટ સાચું ખોટું? ખોટું જ કહેવાય ને. આત્મા નથી એમ કહેવાય? કહી શકાય. કહી શકાય. તો નાસ્તિક થઈ ગયા આપણે? કહી શકાય. પણ નાસ્તિક થઈ ગયા તો પછી કહેશો અપેક્ષિત કથન. અરે ભાઈ, એ શબ્દોથી નહીં, એ નાસ્તિકપણું તું સર્વથા માને છે કે કથનચિત માને? કથનચિત. સર્વથા માનતો જ તું નાસ્તિક છો. અને કથનચિત એટલે પરથી નાસ્તિક. પાછી એવું નહીં સ્વથી અસ્થિ અને પરથી, એ તો વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. કારણ કે કોઈ પણ પદાર્થ મારામાં નથી, માટે હું પરથી કેવો છું? અભાવ. પણ મારાથી કેવો છું? ભાવ થયો છું. તે અહીંયા આપણને કે ભેદજ્ઞાન કરવા માટે આ બે વાત છે. અને એટલા માટે હું કેવો છું? ભાવ સ્વરૂપ કે અભાવ સ્વરૂપ? હું કેવો છું? ભાવ સ્વરૂપ. આ બે સ્વરૂપ છું, પણ એમાં વધારે કે અરે જેમ મારા અનંત ગુણોથી ભાવ સ્વરૂપ છું, એવી જ રીતે અનંત પર પદાર્થોથી અભાવ સ્વરૂપ છું. બે છે મારામાં. સ્વનું ભાવપણું પણ અનંતપણે છે અને પરથી અભાવપણું પણ અનંતપણે છે. તો એ રીતે અહીંયા બે વાત લઈ લીધી. એ હું નથી, અને નથીમાં પછી કરતા નથી, કારયતા નથી, અનુમંતા નથી, કારણ નથી. અને એની સાથે અસ્થિમાં શું લીધું હતું? દરેકમાં પછી છેલ્લે કયો શબ્દ આવ્યો હતો? સહજ ચૈતન્યના વિલાસ સ્વરૂપ આત્માને જ ભાવવું છું. આ અસ્થિરૂપ ભાવ. તો એ રીતે એમાં કે આ બધાની તારામાં નાસ્તિ છે, તો કોના અવલંબન તારે કરવાનું? કે કેવો સહજ ચૈતન્યનો વિલાસ. વિલાસ આખો કોને બતાવવું છે? આનંદને માટે વિલાસ બતાવવું છે. તું જ્ઞાનમય જેમ છો એવી રીતે કેવો છો? આનંદમય છે. પર પદાર્થમાં આનંદ હશે કે નહીં? વિભાવમાં આનંદ હશે કે નહીં? ઓલ્ટર્ડ આનંદ. ઓલ્ટર્ડ આનંદ નહીં, પણ ઇન્દ્રિય આનંદ. ઇન્દ્રિય આનંદ. એ વાત છે ને, એ પેલી તો કલ્પના છોડી જ દેવી. સુખ બે પ્રકારનો, એક અતિન્દ્રિય અને એક ઇન્દ્રિય. એવું ના, આ તો ઝેર એવું છે, એક જીવાડે છે ને એક મારે છે, એના જેવું થયું. એવું હોય જ નહીં. આનંદ તો એક જ જાતનો છે. પણ પહેલું તો એક પરદ્રવ્ય ને પરભાવોમાં અથવા રાગાદી વિકારમાં સુખ હશે કે નહીં, એટલો એક પ્રશ્ન છે. હશે કે નહીં? પરદ્રવ્ય અને વિભાવ ભાવમાં સુખ હશે કે નહીં? સુગુણ તો સુગુણની વિપરીત પર્યાય છે. સુખ ગુણની પ્રેઝન્સ તો છે, પણ વિપરીત પર્યાય છે. પરદ્રવ્ય ને રાગાદીમાં છે કે નહીં સુખ? એટલું છે જ નહીં. ખબર પડી ગઈ? કેમ ખબર પડી? એમાં છે નહીં કેમ ખબર પડી?
શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે અને ગુરુએ કહ્યું છે એટલે કેમ ખબર પડે? સુખ હોત સમય દર્શન પરદ્રવ્યમાં તો છે જ નહીં, કેમ કે એમાં સુખનો ગુણ જ નથી. એ બધું આપણે શાસ્ત્ર વાંચીને ને ગુરુદેવની વાણીથી કહી દીધું છે. હજી કાંઈક બીજું વિચારવું ફરીથી છે ને. આ બધું નો ડાઉટ આપણે એક ગુરુદેવે કીધું ઇઝ મોર દેન ઇનફ છે, પણ સાથે એક વિચારવા જેવું, જો પરદ્રવ્યને વિભાવવામાં સુખ હોત તો જ્યાં હું અનાદિથી ગોતું છું તો મને મળ્યું કેમ નહીં? જ્યાં હોય ત્યાં હું ગોતું તો અનંતકાળ ન જાય. તો આપણે ક્યાં પરદ્રવ્યને વિભાવમાં ક્યારથી સુખ ગોતીએ છીએ અને હજી નથી મળ્યું? શું પ્રૂવ કરે છે કે એમાં છે નહીં. તો એમાં જોઈને એમાં જો હોત તો અનંતકાળ ન ગયો હોત. જેમાં હોય એમાં ગોતીએ તો અનંતકાળ ન જાય, અને અનંતકાળ ગયો એ સૂચવે છે કે ત્યાં છે નહીં. આ એક બહુ જ જીવનમાં એ સ્વીકારવા જેવું છે. ગુરુદેવસિંહ એનો દ્રષ્ટાંત શું આપતા? શું દ્રષ્ટાંત? નહીં, કૂવામાં હોય તો અવેડામાં આવે. गुरुदेव एक दृष्टांत आपता था. मोटी उम्र ना माजी था, उसमें सोई खो गई थी और वो कहाँ ढूंढती है? बुढ़िया का प्रकाश में. क्या? क्योंकि वो कहती है क्या अंधेरे में नहीं दिखती. अरे भाई जहाँ नहीं है ऐसे कहाँ, जितने समय तक ढूंढेंगी नहीं मिलेगी. अंधकार है वहाँ, यदि तुझे डिफिकल्ट लगता है तो प्रयत्न करेगी तो कम से कम मिलेगी. આ એક લોજિક છે કે એને પ્રકાશ છે એટલે હું ત્યાં ગોતું છું. અરે ભાઈ જ્યાં નથી, અને એટલા માટે એક બહુ સિમ્પલ કે મેં જ્યાં ગોતું છે ત્યાં છે ને એટલે મળતું નથી. कम से कम जिसने सुख की प्राप्ति की है, ऐसे जिनेन्द्र देव जहाँ विधि बताई ऐसे जिनवाणी, और जो सुख के प्राप्ति के में मार्ग में आगे चल रहे ऐसे आचार्य उपाध्याय गुरु, ऐसे ज्ञानी दे, उन्होंने कहा इस पर एक विश्वास ला के चलो मैं प्रयत्न तो करूं. तो इसलिए ये हमें प्रयत्न करते हैं कि सहज चैतन्य के विलास आत्मा को मैं बाता हूँ. तो इस प्रकार यहाँ लिया. इस प्रकार 5 रत्नों से शोभित मिला. अब इस प्रकार 5 रत्नों से शोभित कथन विस्तार द्वारा सकल विभाव पर्यायों का संन्यास का त्याग का विधान कहा है. क्या शब्द लिया है? प्रतिक्रमण है ना, इसलिए यहाँ त्याग शब्द दिया है. देखो इस प्रकार 5 रत्नों से शोभित कथन विस्तार द्वारा. मुनिराज कहते हैं मैंने तो इतना विस्तार किया है, कुन आचार्य देव ने तो 5 गाथ हम बता दिया, ये थोड़ा विस्तार हस्तिनाथ से किया. सकल विभाव पर्यायों के संन्यास समझते? आगे शब्द है संन्यास. संन्यास क्या कहते हैं? त्याग. ब्रैकेट में त्याग लखी. और ब्रैकेट में तो त्याग लिखा है, लेकिन और भी संन्यास, छोड़ना, विवाह पर मुक्त होना. चलो चलो थोड़ा थोड़ा शब्द हम स्ट्रांगली आना चाहिए. उदासीन थવું. संन्यास त्याग इसको कहे कि बाद में जिसका स्मरण न हो उसका नाम त्याग है. किसको कहते हैं त्याग? किसको कहते हैं? जिसका स्मरण भी नहीं हो सकता, जिसका छूटना हुआ, फिर उस संबंधी कोई विकल्प न हो, स्मरण न हो. कभी हमने क्यों सोचा है कि हमने वो जो केला आदि होता है ना, यहाँ तो कुछ नहीं, केला आदि के छिलके कहीं डिब्बे में डाल दिया, फिर सोचते हो कि उसका क्या हुआ होगा. अथवा तो अपने जो भी होते हैं ना, जो भी कागज को है काम का था, पूरा हो गया, फाड़ के कहाँ फेंक दिए हमने, फिर उसका क्या होता है? उसका नाम सही में त्याग कहते हैं. और समय साल में यदि आपको त्याग का देखना है तो कहाँ है? बहुत बहुत सर्वज्ञान अधिकार में, सर्वज्ञान अधिकार में त्याग की बात है. कितने प्रकार से त्याग करने को बताया, यही इसमें आता है. प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान. प्रतिक्रमण, उसको प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, तीनों का त्याग को चारित्र कहते हैं. वो बात. हाँ वही उसमें पर कितने प्रकार से बताया, फिर एक एक का 49 प्रकार से बताया. बराबर. कैसे बताया?
साथ इसमें साथ कृत कारित अनुमोदन ये सभी है, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन। उसके में परमिटेशन कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 7 बनते हैं। तो ये 7 प्रकार 7 से करके उन्होंने एक एक के लिए 49 लिया है। और उसको क्या कहा? इसमें कर्म का त्याग, कर्म के त्याग का कर्म, और बाद में तो कर्म फल के त्याग के लिए उन्होंने किसको सिलेक्ट किया? अमृतचंद्राचार्य देव ने 148 प्रकृति, एक एक को लिख देखना है, सुन बहुत अच्छा। उन्होंने इसमें ऐसा ही शब्द दिया जो पद्ममूलधारी ने ऐसे उसके अनुरूप दिया। सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार समय सार। શાસ્ત્ર મળે તો ફટા ગોતી શકાય જલ્દી. સમસ્યા એક શકે ગુજરાતી કેવી રીતે ગોતશો? ચકટ મળી જશે. મૂળ ગાથા, મૂળ શાસ્ત્ર કાઢો ને જલ્દી. મૂળ નો ये तो प्रवचन मूल शास्त्र में से जल्दी मिल जाए. तभी आश्चर्य करके ये समय सार कोई कर्णानुयोग का शास्त्र नहीं है, फिर भी अमृतचंद्राचार्य देव ने एक एक प्रकृति का नाम लेके कितनी बार? 148 बार लिखा है. सर्वविशिष्ट सर्वविशिष्ट समय सार हिंदी सर्वविशिष्ट ज्ञान કેટલું વ્યાખ્યા और अभी तो आगे थोड़ा जाएंगे, जाने वैसे तो और भी जाने. आगे 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 आता है सदा प्रतिक्रमण करे सदा प्रत्याख्यान. और भी એમાં શું છે પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાહાર 383 આલોચનાનું સ્વરૂપ એ 283 નથી, 283 मतलब 283 तो નહીં 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 આ 383 હશે તો 383 મારામાં બતાવી રહ્યું છે. टू 280. કાન ને પ્રતિક્રમણ નીતિ हाँ हाँ आगे ઉદ્ગલ आगे દ્રવ્ય અને આવે આવશે બસ અને સુખ્ય સુખ્ય आत्माचार्य ते कहा बस सुबह बस आगे बस आगे 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 ગાથાત્મક हाँ हाँ नहीं आगे आगे टीका 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 ટીકા हजी 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 आगे आगे एक एक कलश आएगा अभी एक. देखो बस फिर से एक नीचे अभी लास्ट लाइन. अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य है जिसमें ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना. हाँ ओके लास्ट लाइन मिली. अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं जिसमें ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना. अज्ञान चेतना के 2 डिवीजन किए, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना. फल प्रकट करते हैं. आगे चलो आगे 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 આની અંદર બરાબર છે आगे आगे ટીકા हाँ, आगे और भी अब आए ना तीनों काल के अतीत वर्तमान संबंधी समस्त कर्म को देखो मिला. श्लोकार्थ नीचे श्लोकार्थ ઓકે त्रिकाल के अर्थात अतीत वर्तमान और अनागत काल. तीनों काल आ गया. અતીત વર્તમાન हाँ, અનાગત કાળ સંબંધી हाँ, तो इसमें क्या आया? 3 काल में कौन आ गया? अतीत में कौन आया? प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण आ गया. वर्तमान में कौन? आलोचना. और अनागत में कौन आया? प्रत्याख्यान आ गया. एक कर्म के 2 आया अभी, कृत कारित अनुमोदन और साथ में
मन वचन और काया। आगे तो यहाँ क्या लिया है? कृत कारित अनुबोधन कारण लिया है ना। और इसमें अभी साथ में कौन इंक्लूड किया? मन वचन काया। इनका 7 डिवीजन बनता है कि नहीं? तो इसमें देखो, उसमें ए अभी देखो आगे पूरा देखो 49 बोल आएगा। चलो ये सब 10, 23, 25, आगे 36, 49 आएगा। हाँ बस आ गया, बस बस बस। अभी 49 कैसे बनते हैं? हाँ, इन 14 भंग के हाँ, अंदर भंग माने कैसे बनते हैं? पहले भंग में वो जाने, वो सिंपल बनाना है ना। हाँ, तो पहला चलो मन वचन काय में 7 कैसे बनते हैं? मन वचन काय एक एक ले लो, एक एक। फिर मन वचन लो, वचन काय लो, और काय और मन लो। आगे और 3 आगे फिर से मन वचन काया अलग अलग एलोन। अभी कंबाइन करो, मन वचन, वचन काय और काय मन। ठीक, और तीनों एक मन वचन। कितने? 7 हुए। 7 हो गए, ऐसे कृत कार्य का 7 करो। 7 × 7 49 हो जाए। 49 हो गए। ये सिंपल वे से है। तो ये देखो, ये फिर इसमें लिया, ये क्या लिया? किसका है? पूर्व के लिया, प्रतिक्रमण। चलो आगे चलते आगे। यहाँ से बाद में वर्तमान क्या आएगा? तो आलोचना है। हाँ, ये अभी हजी आगे, हजी आगे चलो, हजी हाँ बस अभी आया। ये भूतकाल में कर्म किए थे। अभी भूतकाल क्या आ गए? 49 इस प्रकार प्रतिक्रमण कल्प, प्रतिक्रमण की विधि समाप्त हुआ। आया? देखो, इसमें एक किसी को सोचना है ना, विकल्प माने विचार से कि देखो ये विधि है, एक एक को याद करते। बाकी सही माने में अपने स्वभाव की निर्दोष, जिसमें दोष स्वभाव की ओर जाएंगे तो एक साथ सभी हो जाए। ये तो अपने भावना के लिए एक एक करते हैं। आचार्य देव अमृत चंद्राचार्य एक एक बना। अभी इसके बाद में आलोचना है, अब टीका में आलोचना, ये वर्तमान की आलोचना कब करते हैं? उसमें भी ऐसे ही 49। चलो आगे बढ़, 49 इसमें भी 49 आ गए। 49 इस प्रकार प्रतिक्रमण के समान आलोचना में भी 49 भंग है। उसका कलश है। और बाद में आएगा अभी आया क्या आया? प्रत्याख्यान की विधि के आलोचना समाप्त हुआ। अब टीका में प्रत्याख्यान करने वाले को कहते तो हैं। प्रत्याख्यान करने वाले ये भावना करते हैं जो भी करना है कि भाई चलो मैं करना है तो ये देख लो कि भावना करो कि मैं भविष्य में, और इतना समझना कि प्रत्याख्यान किसको करते हैं कि भविष्य में मैं दोष करके फिर उसका क्या करूंगा? प्रत्याख्यान करूंगा। और इसमें प्रतिक्रमण के संबंध प्रत्याख्यान में 49 भंग। मेरे पर प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? भविष्य के दोष है ना, माने भविष्य में दोष करूंगा और फिर उसका त्याग करूंगा, तो करूंगा ही नहीं। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे वर्तमान में भविष्य में नहीं करूंगा, ऐसा वर्तमान में निर्णय है। करके त्याग करने की बात नहीं है। भूतकाल के तो हो गए हैं, लेकिन भविष्य में नहीं करो, ऐसी वर्तमान में उसका निर्णय, उसका नाम है। तो इस प्रकार चलो जी, और भी आगे चलो। तो मन वचन काया से 7 भंग किए और अनुमोदन के 7 भंग किए, तो 7 × 7 49 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए। इस तरह से बस इस तरह। तो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ वही आगे 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 आगे। अभी कर्म फल आएगा। देखो अभी प्रत्याख्यान क्या भावना जो, और इसमें चलो वो पढ़ना है। अब समस्त कर्मों के संन्यास त्याग की भावना को नचने के संबंध का कथन समाप्त करते कलश रुका है। क्या लिया इसमें? क्या है? सभी कर्मों की बात है, सभी की बात है। यहाँ इसमें क्या है? कर्म फल आए यहाँ, जो ये कर्म चेतना है ना, और दूसरी कौन सी है? कर्म फल चेतना। तो यहाँ 3 में तो लिया प्रतिक्रमण आलोचना पे। अभी कहते हैं सभी प्रकार के, देखो इसमें भी है, नीचे श्लोकार्थ है ना, नीचे समस्त कर्म फल की संन्यास भावना का नचाने वाला। मुझे कोई भी कर्म का फल नहीं चाहिए। कर्म का फल माने कौन सा?
कोई भी क्योंकि वो कैसे है, देखो आगे आगे पूरा पढ़ते हैं। वो कैसे है, कर्म रूपी वृक्ष के फल है। कौन? कर्म रूपी विष वृक्ष, कर्म रूपी विष वृक्ष के फल है। कौन? कौन? ये सभी भांगे जो बताए ये गए। कर्म ये माने जो है प्रकृति, कर्म फल है ना। 148 प्रकृति कैसी है? कर्म रूपी विष वृक्ष के फल है और मेरे भोगे बिना भी नाश हो जा। तो मैं क्या करता हूँ, चलो जब भी उदय तो उसके नीचे की पंक्ति, अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का निश्चलतया संचेतन करता हूँ। मिला शब्द उसके नीचे, उसके हाँ, मैं अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का निश्चलतया संचेतन करता हूँ। मिला शब्द। ये किसके लिए है? सभी 148 प्रकृति, इसमें 148 में कौन सी प्रकृति आ गई? तीर्थंकर प्रकृति भी आ गई, तीर्थंकर नाम कर्म भी आ गई, सातावेदनी भी आ गई, सभी पुण्य के जैसे प्रकृति सभी आ गई। फिर भी आचार्य देव कहते हैं सब कैसे है। इसे क्यों इतना माने हार्श हो गए ना? हार्श माने इसको, ये सबको कर्म रूपी विश्व के फल कहा आपने। अरे कोई भी कर्म के उदय में तुझे अच्छापना लगा, समझना तू आत्मा का अहित कर रहा है। आत्मा को छोड़ के कहीं भी तुझे अच्छापना लगा, रुचि लगी, सुख बुद्धि हुई, समझ लेना तू आत्मा का क्या सही माने में क्या करता है? अहित करता है, घात करता है। घात करता है। तो इस प्रकार यहाँ, तो यहाँ भी देखे वहां जैसे लिया ना, चैतन्य स्वरूप आत्मा का निश्चल, तो यहाँ इसमें पद्मावधारी ने क्या लिया? सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को भाता हूँ। आया, ऑलमोस्ट सेम आ गया। वहाँ नास्ति भी आया और वो भी एक संचेतन का अर्थ समझना है, तो उसका आगे है देखा। अभी अभी इसके आगे तो संचेतन का अर्थ आएगा आगे उसमें ही। हाँ, आगे आगे देख, कोई बात। आगे 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 हाँ आगे हाँ जो बस 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 वही अब टीका में समस्त कर्म फल के संन्यास की भावना आया। फिर से ये अर्थ करना, ये संन्यास शब्द हमारे यहाँ आया था। हाँ, संन्यास आया ना। अभी संन्यास की भावना को क्या शब्द लिया है? नचाते है। यहाँ वही भी यहाँ सन्यासी शब्द है। तो संन्यास माने उससे त्याग, माने उसमें अभाव, उसकी उदासीनता, कर्ता भाव का अभाव, उसको नचाते हैं। नचाते शब्द लेना है, नचाते निकाल देते हैं। नचाते निकाल देते नहीं आता है। नचाते माने क्या है? उसको गुजराती में कहे नचावे से, नचावे से પોતાની આંગળી જેમ કે ના મને नचावा करे से बुद्धू बनावीने, माने वही के वही भाव में मैं रहता हूँ। शब्द अलग अलग आ जाएगा लेकिन भावना में एक रूपता आएगी। ऐसे 148 प्रकृति का नाम आएगा लेकिन उस शब्द से में एक रूपता में क्या शब्द आएगा कि जो यहाँ शब्द है नीचे में, उसके नेक्स्ट लाइन ही मति ज्ञानावरणी कर्म के फल को नहीं भोगता। तो क्या करता हूँ? चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन, संचेतन का अर्थ आगे एकाग्रतया अनुभव करता हूँ। और यहाँ चेतना का अनुभव माने वेदना, और सम का अर्थ है संचेतना, एकाग्रतया अनुभव करता हूँ। देखो इससे क्या हुआ? एकाग्रतया अनुभव करता हूँ। ये चारित्र की मुख्यता लिया क्योंकि वहां त्याग की सब है ना, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, ये सब किस में आते हैं? चारित्र में। और इसमें गाथा में भी आगे आगे जो नित्य प्रतिक्रमण करे, नित्य आलोचना, नित्य करे प्रत्याख्यान, तो वो आत्मा चारित्र है। ऐसा है ना तीनों। तो यह कहते कि अभी मेरा उपयोग में, देखो ये अंतिम अधिकार आ गया समय सार का, और अंतिम गाथा वो थोड़े आ गई। तो कहते मैं अभी आत्मा का ही अनुभव में, एकाग्रता में, शुद्धोपयोग में ही मैं एकाग्र होते करता। तो इस प्रकार कर्म चेतना और कर्म फल
चेतना दोनों को छोड़ के ये जो करते हूँ अपने ही चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचेतन माने कौन आ गया? ज्ञान चेतना। दो का अभाव, बराबर। कर्म चेतना और कर्मफल चेतना का अभाव, और यहाँ किसका पढ़ना अभी? ज्ञान चेतना का कि एकाग्रता करता मैं अनु, और यही उसका नाम सही माने में। उसका अर्थ क्या? चलो इतना सब लिया, उसका अर्थ क्या? कि ये पुद्गल की जो बहुत रचना दिखाई देती है, मगर वो जाल में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। इसका अर्थ ये हुआ, चाहे सो आप प्रतिक्रमण करो, आत्मा का एकाग्रता रूप अनुभव होना चाहिए। आलोचना करो, आत्मा में एकाग्रता रूप में लीनता होना चाहिए, और ऐसे ही प्रत्याख्यान करो, ये होना चाहिए। सबका एक ही कार्य है कि अपने शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा में एकाग्रता, उपयोग शुद्धोपयोग में एकाग्रता, वही यथार्थ रूप से ये है। तो यहाँ भी ऐसे चलो अपने नियम सार में फिर कहने का तात्पर्य तो ये है कि आचार्यों ने ऐसे परमागमों में, हालांकि ये कौन सा है परमागम? दोनों समय सा नियम सा द्रव्यानुयोग का, और उसमें भी ये बताते हैं कि यथार्थ रूप से क्या होता है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, जो चरणानुयोग में विधि बताए ऐसा है कि स्वभाव के आश्रय की वो यथार्थ रूप से है। वहाँ तो उस समय में जो विकल्प होता है उसकी चर्चा है। यहाँ तो कहते कि यथार्थ रूप से यहाँ परमार्थ प्रतिक्रमण कैसे होता है। तो फिर से यहाँ 5 रत्नों के द्वारा शोभित कथन विस्तार द्वारा सकल विभाव पर्याय, सकल विभाव पर्याय, हाँ अभी थोड़ा थोड़ा अभी बेक, हाँ बस आ गया। इसमें सकल विभाव पर्याय हो, इसमें सकल विभाव में कौन लेंगे हम? सकल विभाव पर्यायों का संन्यास, संन्यास माने त्याग। ये जो सब कर्म चेतना, कर्म फल चेतना की बात बताए, 49 पार्ट ईच में बताया, तो वो सभी को विभाव पर्याय कहेंगे। सभी को जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधे वो किस में आएगी? विभाव भाव। हाँ, अरे तीर्थंकर होंगे तो क्या होगा? बंधन, वो इसका फल है। तीर्थंकर नाम कर्म की तो है तो कि देखो तीर्थंकर पद मिलेगा, समोषण होगा, स्वइंद्र से पूजित होंगे, ये सब ये पुद्गल की रचना है। सब पुद्गल की रचना है। कई बार में जैसे मिलता है पुण्य फला अरंता, पुण्य के फल में क्या हुआ? अरियंत हुए कि नहीं? तीर्थंकर हुए कि नहीं? पुण्य के फल में अरियंत? अरे यहाँ पुण्य के फल में अरियंत दशा माने सर्वज्ञ वितरागपना नहीं है, पुण्य के फल में संयोग है। एक बाजू कहे कि अरियंत पद माने वितरागता और सर्वज्ञपना, तो पुण्य फल में तो संयोग है वहाँ। और पुण्य तीर्थंकर प्रकृति बनती है, किससे बनती है? वितराग भाव से या राग भाव से? राग भाव से। तो राग भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, तो तीर्थंकर प्रकृति के निमित्त से वितरागता होगी कि भाई संयोग हो गए समोषण आदि का। लिंक ही नहीं हम समझते, सिर्फ क्या समझ लेते हैं? प्रवचन सार में लिखा है पुण्य फला अनंता, लिखा है ना? कौन से गाता है? गुरुदास याद कराते थे, 45 नंबर की गाता है। कर भाई इतना समझ। फिर से 3 लिंक क्या है? पुण्य साधक दशा में ऐसे पुण्य होते हैं, उसके निमित्त से क्या होता है? तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधन बनती होती, पुण्य के बंधन ही होता है। और उसके निमित्त से क्या उदय आता है? तभी क्या है? समोषण आदि वैभव मिलते हैं। लेकिन उससे कोई वितरागता मिली तो ऐसा हुआ राग से वितरागता हुई। फिर तो यहाँ इस प्रकार यहाँ विभाव सभी, अभी तू पूछना ही मत कि ये कसाई की मनता करे तो क्या है। अरे तू स्वयं बोलता है कसाई, और उससे तू बोलता है हमें लाभ होता है। अरे यहाँ विभाव पर्याय के संन्यास, फिर से त्याग, उनका फिर स्मरण भी न हो, इसका विधान। चलो वो कलश लेते हैं। तो ये जो हो गया, यानी कि मन वचन काया, उसके 7 करना कराना अनुमोदन, उसका 7 49 हुए। तो 49 भांगा जो पार्ट्स हुए, तो वो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों में लगेंगे।
कर्म चेतना में, कर्मफल चेतना के लिए 148 प्रकृति अलग ओ है, 148 प्रकृति अलग है। दो अलग है। कर्म ये सभी 49 3 है ना, हाँ वो कर्म चेतना के लिए है। प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, ये तीनों किस में लिए? कर्म चेतना के लिए। नहीं, प्रतिक्रमण में भी 49, 49, आलोचना में 49 और प्रत्याख्यान में भी 49। ओके, इस सबको किस में लिया? टोटली उनका कितना है? 147 होते हैं। 147 ओके। और किस में लिया? कर्म कर्म चेतना के लिए। और उसके साथ में कर्म फल, क्योंकि ये प्रकृति है ना, प्रकृति के निमित्त से संयोग होता है ना, तो उसके लिए कौन सा लिया? कर्म फल चेतना का त्याग के लिए। वो कर्म चेतना के त्याग के लिए था। और 148 प्रकार की चर्चा की, वो किसके लिए? कर्म फल चेतना। तो एक एक की बात आएगी वहां पर कर्मफल चेतना में। फिर आप एक एक ले लो, बाकी तो वहाँ या तो ये एक में माने एक मति ज्ञानावरणी कर्म के फल को नहीं चाहता हूँ मैं, आत्मा को, इसमें एक एक ही लिया। फिर इसमें आपको घटाना है तो और घटाओ, कोई चिंता नहीं। सो ये 49 प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना के 49 ईच, यानी कि 147 तीनों मिला के 140। उसमें काल की लेकर में भूतकाल में मैंने काया से किया, वचन से किया, और फिर मन से, वचन से, काया, एक एक करके, फिर दोनों कंबाइन करके ऐसे जो मैंने दोष किया है उससे रहित होना। बराबर। अभी यहाँ कहते कि भोक्ता पने का भाव, वो तीनों में क्या आया? कर्ता पने का भाव। और यहाँ कर्मफल में क्या? मति ज्ञानावरणी का उदय, मुझे ज्ञान अभी खिला। क्यों खिला? मति ज्ञानावरण कर्म का क्षम हुआ, इसलिए मैं उससे कोई हर्षित नहीं होता है। मैं तो अपने आत्मा की अनुभूति में हूँ अभी। इस प्रकार से वहाँ एक एक में एक एक प्रकृति। सो ये 148 कर्म प्रकृति हो जाएगा। वो 147 49 प्लस 49 प्लस 49 करके 147 हुआ था। और ये कर्म चेतना के लिए 147, हाँ, कर्म फल चेतना के लिए 148। ओके। नहीं, कहने का तात्पर्य आचार्य देवों ने माने ये भाव घुटाए है एक एक। नहीं तो ऐसे ही बोल देते थे 148 प्रकृति को मैं भोगता नहीं हूँ, मैं तो अपने आत्मा को ही संचेतन करता हूँ। एक बात कहने का तात्पर्य तत्व घुटने के लिए होता है। तो 148 में जो मति ज्ञान की बात आई, फॉर एग्जाम्पल के मति ज्ञान एग्जाम्पल, तो उसमें भी वो 49 लेंगे एक एक? नहीं, मन वचन का करना कराना अनुमोदन वो सब लेंगे, वही ले। वहाँ तो यह है मैं उसको भोगता नहीं, कर्ता में वो मन वचन काया का सब आता है। बराबर। यहाँ भोगता नहीं हूँ ऐसे। ओके, मैं उसको भोगता ही नहीं, बस सिंपल एक बात। लेकिन वहाँ तक एक भावना तो करे, कोई भी संयोग के प्रति उपेक्षा हुए बिना रहे। केवल नाना वर्णिका के क्या हुआ? केवल ज्ञान वर्णिका का वो उसको भी भोक्ता में से निकाल दिया। मैं ये सभी विकल्पों में हो ही नहीं, उसका विकल्प निकाल माना उनका केवल नाना वर्णिका। अभी तो चलो वहाँ यहाँ क्या है, उदय नहीं हुआ है तो, लेकिन आवरण है वहाँ केवल नाना वर्णिका। लेकिन किसी में मुझे कोई उत्साहित परिणाम नहीं, मुझे अपना आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसे पूरे जगत से उपेक्षा वृत्ति, उसका नाम ही क्या कहेंगे? संन्यास, त्याग, और उसकी भावना निरंतर करनी। और ये इसमें तो 148 एक एक कर्म की प्रकृति को मैं नहीं करता और मैं आत्मा स्वरूप हूँ, इस तरह से एक एक कर लिया, एक एक को याद किया है। बराबर। इन्हें कहने का तात्पर्य ये द्रव्यानुयोग है, कर्णानुयोग नहीं है। लेकिन फिर भी आचार्य एक एक तो घूंट के ऐसे करके इतना, जैसे हमने कभी भी इंग्लिश का अल्फाबेट A to Z एक बार लिखा हो याद कर लिया, और अंक में 1 to 10 और कैसे याद किया, बार बार करते थे ना। આ એક ફરીથી એક બહુ જ વિચારું તત્વ જેના જીવનમાં ઘૂંટણ માટે છે ને એને ક્યારેક પ્રાપ્તિનો અવસર છે। इसलिए पूज्य बेंसी ने ये 4 शब्द दिया था। कौन से 4 शब्द? बहुत अच्छा है 4। तत्व जिज्ञासा नहीं, यही पर से जो चर्चा चली उसमें से तत्व का घूंटण और रुचि का पोषण।
તત્વ કા ઘૂંટણ ગુજરાતીમાં તત્વનું ઘૂંટણ અને રુચિનું પોષણ આ જીવનમાં બસ કરવા જેવું છે. તત્વનું ઘૂંટણ એટલા માટે મારે કરવું છે કે મારી રુચિનું પોષાય એટલા માટે. મારે કોઈ ક્ષોભ વધારો છે ને મને બધું શાસ્ત્રનું યાદ છે ને કરવું છે इसके लिए नहीं है. सिर्फ एंड सिर्फ मात्र किसके लिए? बिजनेस में आप कोई भी टर्नओवर करते सिर्फ किसके लिए करते हो? प्रॉफिट के लिए. तो चार शब्द तो याद रह सकते हैं ना, तत्व का घुटन और रुचि का पोषण. बस यही मार्ग पे चलेंगे तो आत्मा इतने ये सभी इसमें ये घुटन किया, ये भी 5 गाथा में ऐसे ही शब्द लिया है सभी. चलो इसके बाद में जो कलश है 109 नंबर का वो लेते हैं. इस प्रकार इसमें भी आखिर की 2 लाइन है ना श्लोकार्थ में. पंचरत्नों द्वारा जिसने समस्त विषयों के ग्रहण की चिंता को छोड़ा है. देखो एक एक शब्द. इस प्रकार पंचरत्नों द्वारा आखिर की 2 लाइन, आखिर की 2, आखिर की 2, आखिर श्लोकार्थ और भी नीचे श्लोकार्थ. श्लोका इस प्रकार पंचरत्नों द्वारा, पंचरत्न माने 5 जो गाथा है 77 से 81 द्वारा जिसने माने कौन? मैंने अभी इतना तो नहीं कर लिया है भैया. अपने ले जिसने, यहाँ तो जो मुनिराज आदि ले लो, सम्यक दृष्टि लो. जिसने समस्त विषय, शब्दों फिर से एक सोचते नहीं. समस्त विषय माने क्या? जो समस्त विषयों के ग्रहण की चिंता को ये छोड़. कर्म चेतना, कर्मफल चेतना का चिंता छोड़ा है. अरे कोई भी माने चक्रवर्ती जैसा बाई में वैभव हो, ऐसे साधक आत्मा कोई होते ऐसे नहीं है. मिथ्या दृष्टि कभी होते हैं ना, सभी विषय तो वो भी बाह्य में कोई देव पर्याय में अनुकूलती सामने समस्त विषयों की क्या नहीं ग्रहण की चिंता. ग्रहण की चिंता माने मेरी आकांक्षा होती है कि मेरी तृष्णा मुझे मिले, भविष्य में मिले. अभी थोड़ी बहुत है तो वो टिक रहे. तीनों है. नहीं है तो जुटाने की है, जुटाने है तो टिके, और टिके तो भविष्य में भी ऐसी. कोई भी प्रकार की चिंता को छोड़ा है. छोड़ा का त्याग, क्या त्याग आया? काम किया ऐसा नहीं है. इससे और तो नास्ति आई. तो अभी अस्थि में क्या है? निज द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में चित्त एकाग्र किया है. क्या है? ये भव्य जीव जो आत्मार्थी है, साधक आत्मा है, ऐसे फिर से आगे बेक जाइए थोड़ा. हाँ, लास्ट लाइन. निज द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में चित्त एकाग्र. ये क्या है? ये अस्थि से. हाँ, अस्थि से सेंटेंस. अस्थि हो तो नास्ति आई. अभी अस्थि. ये इसमें क्या लेना? सविकल दशा, निर्विकल दशा? निर्विकल दशा. निर्विकल दशा. चित्त एकाग्र किया है. चित्त माने ज्ञान के उपयोग को वहाँ से. वो सविकल दशा नहीं. अभी तू सम्यक दशा नहीं पाया तो पहले तू विकल्प बात तो अलग बात. लेकिन ये किसकी बात है? आगे आया था ना, सच चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को मैं बात. ये साधक आत्मा की बात है. तू भी अभी विकल्प आत्मा करना है तो कर ले. बाकी नहीं तो इसमें ही निश्चय परम आवश्यक अधिकार है. वहाँ क्या लिया है? द्रव्य गुण पर्याय संबंधी विकल्प करना वो भी आवश्यक नहीं है. वहां तक लिया है. कहाँ तक लिया? अपने द्रव्य गुण पर्याय का 3 भेद हुआ ना, उस संबंधी विकल्प होना वो भी कुछ स्ववशपना नहीं है. विकल्प परवशपना है. आवश्यक नहीं है. आवश्यक में कभी भी बंधन हो ऐसा परिणाम नहीं होना चाहिए. तो यहाँ तो अपने आत्मा में एकाग्र हो गए, उपयोग अंदर में. तो वह भव्य जीव, देखो आचार्य मुनिराज कहते हैं कि भव्य कैसा होता है कि विषयों की ग्रहण का विकल्प छोड़ा है और अपने स्वरूप में जो लीन हुए हैं, ऐसा भव्य निज भाव से भिन्न ऐसे सकल विभाव को छोड़कर. अभी आखिर में पुरुषार्थ किया. अभी तो वर्तमान में ऐसे है. अभी और पुरुषार्थ करके अबुद्धि पूर्वक का विकल्प भी छोड़कर अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त करता है. इसमें क्या बात आ गई? चलो इसमें आप क्या समझे, क्या है?
को जो साधक आत्मा है वो अपना पुरुषार्थ की तीव्रता बढ़ाएगा तो अपने भाव में ज़्यादा के ज़्यादा स्थिर होगा। 7 गुण स्थानक में तो 48 में स्थिर हो गया तो क्षणी करके सपक श्रेणी मान मान के कहाँ के- पहुंच जाएगा मोक्ष में। नहीं वो 12 गुण स्थानक बाद में तो फिर आगे बार- मोक्ष वो तो है ही, वही इम्प्लाइड है इसमें। स्वरूपाचरण कही शकाय। और स्वरूपाचरण वो चौथे गुण स्थान का भी स्वरूपाचरण है, और ये श्रेणी मानते उसको भी एक स्वरूपाचरण है। स्वरूपाचरण। वो दोनों तो चाहिए। श्रेणी को भी स्वरूपाचरण करेंगे। चौथे गुण स्थान में वो है, और यहाँ भी श्रेणी जो आता है ना 6 डाला में, वो इस प्रकार से श्रेणी मानते हैं ना, वो भी स्वरूपाचरण की आखिर का बिंदु है। तो दो वो चालू हुआ 4th से वो हाँ, संवेदना। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, उसको भी एक स्वरूपाचरण कहते हैं। यहाँ तो आगे श्रेणी के मानते हैं ना, वहाँ आखिर का शुद्धोपयोग रूप से आखिर का स्वरूपाचरण। स्वरूपाचरण। यहाँ देखे फिर से एक और भी देखे, आप सोचना कि कुंद आचार्य देव ने यही नियम सार की दूसरी गाथा में क्या कहा कि जिन शासन में किसका वर्णन है। दूसरी गाथा नियम सार मार्ग और मार्ग फल की। मार्ग तो एक कलश में मार्ग क्या बताया? मार्ग फल दोनों बता दिए। हाँ, तो मार्ग क्या दिखाया? निज भाव से भिन्न ऐसे सकल विभाव को छोड़कर विभाव को छोड़ा है और अपने स्वरूप ने चित्त एकाग्र किया, वो मार गया। मार्ग और फिर कल क्या हुआ कि मुक्ति। अल्प काल में मुक्ति मुक्ति। होती है। दोनों बात। अब कोई भी इसमें देखे, जैसे समय सार में कुंद आचार्य देव ने 5वीं गाथा में क्या कहा, मैं पूरा समय सार में किसको कहूंगा? एकत्व विभक्त आत्मा आप कोई को। भी गाथा ले लीजिए, आपको एकत्व विभक्त कोई न कोई रूप से मिल जाएगा। 6ठी गाथा में क्या एकत्व विभक्त मिलेगा? प्रमत प्रमत नहीं, विभक्त आ गया और में ज्ञायक भाव हो, एकत्व हो गया मेरा। अब कोई भी ऐसे गाथा में लेगा ना तो अपना ये भाव आ जाएगा। ऐसे व्यवहार ने अभूतार्थ है, किसमें आया? उससे विभक्त हो, शुद्ध नहीं भूतार्थ हो, वो मेरा एकत्व आ गया। ये पूरा ये आप माने शास्त्र की रचना को ऐसे समझना कि ऐसे नहीं होती है। अंदर में कितने भावों के साथ उसमें मिलान करके आचार्य देव ने सहजता से एक बहुत अच्छा एक कर्ता बुद्धि से ऐसे परमागम कभी रचे नहीं जाएंगे, और ज्ञाता भाव में सहज ऐसी रचना हो जाएगी। क्या है कर्ता बुद्धि? नहीं, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे कर, कर्ता बुद्धि के भाव में ऐसे परमागमों की रचना कभी होने वाली नहीं है, और सहजता में ऐसे हुए बिना रहेगा नहीं। तो इस प्रकार ये 5 गाथा और कलश भी हुआ। अब 82 गाथा मारते हैं। 82 गाथा आगे ही है। अभी इसमें क्या हुआ देखो, समय सार में हम फेमिलियर है। क्या फेमिलियर है कि कोई भी गाथा के पहले उसका क्या आता था? टाइटल, हेडिंग आता। यहाँ आपको पढ़ना है ना तो टीका का फर्स्ट लाइन पढ़ लेना। चलो हम टीका का पहला लाइन पढ़ लेते पहले ही। यहाँ भेद विज्ञान द्वारा क्रम से निश्चय चारित्र होता है, ऐसा कहा है। फिर से भेद ज्ञान द्वारा, तो भेद ज्ञान से क्या हुआ? स्वपर का विभाजन हो गया, स्वपर का भेद हुआ। भेद। ओके, इससे क्या हुआ? स्वपर का भेद होने से पर निकल गया और स्व में एकत्व करने लगा। हाँ, चलो और भी कुछ और भी कुछ। भेद ज्ञान से क्या हुआ? स्वभाव विभाग का हुआ, स्वद्रव्य परद्रव्य हुआ। इससे एक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ दशा, सम्यक दर्शन। अभी जो कहते हैं वो ही भेद ज्ञान का बल चालू है। कुछ विधि में वो फर्क नहीं करना है। जो भेद ज्ञान से प्रारंभ हुआ है उससे ही द्वारा अभी भेद ज्ञान, अभी अस्थिरता का राग से भेद ज्ञान करते करते, और शब्द आगे लिखा है द्वारा क्रम से। श्रद्धा में क्या लिखा था? क्रम से नहीं है, एक साथ एक ही समय में मिथ्या में से सम्यक हो जाता है। पूर्व भूमिका आती वो अलग है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा है? एक ही साथ। और यहाँ पूर्णता, चारित्र में पूर्णता करनी है तो क्या होगा? क्रम होगा। क्रम से होगा। इसे आया अभी? तो क्रम से निश्चय चारित्र होता है। आया? निश्चय चारित्र माने चारित्र तो अभी परमार्थ प्रतिक्रमण। पहले चारित्र माने
अनंत आनंदी कसाय गया और बाकी के जो कसाय छूटना है वो क्रम से निकल जाएंगे। ऐसा पहले तो हो गया, तो यहाँ अभी निश्चय चारित्र होता है ऐसा कहा है। तो ये क्रम के लिए क्या होना, हमें क्या करना, तो देखो मूल गाथा चलो हम पढ़ लेते हैं, उसका पद्यानुवाद नीचे। इस भेद के अभ्यास से माध्यस्थ हो चारित्र लहे, चारित्र दृढ़ता हेतु हम प्रतिक्रमण आदिक अब कहे। देखिए कुंकनाचार्य देखे हम तो ऐसा कर रहे हैं, तुझे ऐसा यदि चारित्र माने और मोक्ष प्राप्त करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। किसी को लगता है ना हमें ये अभी तो सम्यक दर्शन की बात करो ना, ये सब चारित्र की क्यों बात करते हो, तो तुझे भविष्य में ऐसा चारित्र करके मोक्ष नहीं जाना है क्या? अबे तुझे ऐसे जगत में कोई भी विषय जान अपना प्रयोजन नहीं, वहां तो समझने का या जानने के क्या है इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है, तो यहाँ क्यों नहीं है? तो इस भेद अभ्यास से देखिए इस किसके साथ लिंक करे, इस यानी कि भेद विज्ञान की बात की नहीं, थोड़ी वो तो भेद है, लेकिन इस भेद के अब इस प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान पर अरे अगली जो 5 गाथाओं जाए वो ही तुझे आगे बढ़ाना। इस भेद अभ्यास जो 5 गाथा में बताया ना सभी, ये तो इतना, बाकी कोई भी विभाव पर्याय ले लो, कोई अशुद्ध पर्याय ले लो, कोई भी ऐसे जो बताया, कैसे बताया वहाँ, वो मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ तो क्यों हुआ कि मैं उसका कर्ता नहीं, कार्यता नहीं, अनुमोदक नहीं और कारण, वो ही भावना है भेद अभ्यास। वो तू करेगा तो क्या होगा, भेद अभ्यास से पहले क्या होगा, माध्यस्थ क्लेश, यानी कि समता भाव, समरसी भाव, यानी कि राग द्वेष विनय का शब्द से समझो, माध्यस्थ, मध्यस्थता। हाँ, मध्य में जो रहता है, स्थ रहना, मध्य में स्थ, नो बायस। जैसे स्पोर्ट्स होता है ना, स्पोर्ट्स में 2 टीम खेल रही है तो अंपायर क्या होता है, मध्यस्थ में माने कोई टीम में फेवर नहीं करे, कोई भी फेवर नहीं माने, वही क्या है, बायस नहीं है इसे। जैसे जज होता है, जज में क्या होता है, एक फरियादी होते हैं और एक आरोपी होता है ना, तो जो जज होता है वो किसका पक्ष लेता है, किसी का। तो बस यही तुझे करना है, ऐसे ही भेद अभ्यास करेगा तो कैसा हो जाएगा, माध्यस्थ हो जाएगा। और वो हमें समझना है हमारी भूमिका के लिए माध्यस्थ पन्ना क्या हमारी भूमिका, न अनुकूलता का राग और न प्रतिकूलता में द्वेष खेद, ये हमारा माध्यस्थ पहला। तो ये प्रथम माध्यस्थ हो चारित्र लेता है और वही चारित्र दृढ़ता के हेतु फिर से, और ये चारित्र कैसा है, विकल्पमय है कि वितरागतामय है, निर्विकल्प दशा का है, वितरागतामय है, विकल्प से रहित, निर्विकल्प माने वितरागतामय। तो उसके ही दृढ़ता के लिए हम ये प्रतिक्रमण का आदि का भेद, प्रतिक्रमण आदि शब्द दिया है, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, आगे जो भी अधिकार आएगा, आवश्यक अधिकार आएगा, प्रायश्चित अधिकार आएगा, अरे समाधि अधिकार आएगा, भक्ति अधिकार आएगा, वो भी किसके लिए है, चारित्र। ये चारित्र, और चारित्र कैसा, दृढ़ता करने, चारित्र कैसा, मध्यस्थपना, जहाँ न राग न द्वेष। देखो पूरा लिंक ले लीजिए, जहाँ न अनुकूलता का राग न प्रतिकूलता का द्वेष, ऐसा जो मध्यस्थपना है वो चारित्र है। और चारित्र को ही दृढ़ करने के लिए उसका ही विस्तार करके बताएं। जैसे जैसे 10 लक्षण पर्व में हम क्या करते हैं, एक ही चारित्र को विस्तार करके कि वहाँ क्रोध नहीं है, वहाँ मान नहीं है, वहाँ माया, इस प्रकार से बाकी बात तो किसकी करनी है, एक चारित्र की। ऐसे ही आचार्य देकर हमें बताना है तो मूलभूत तो चारित्र, और चारित्र क्या है, माध्यस्थपना। प्रवचन सार में ऐसी कोई गाथा है, प्रवचन सार में ऐसे चारित्र संबंधी ऐसी
अभी क्या इतना सब गुरुदेसी याद रखे, हमें तो कैसे याद रखे? नहीं, देखो इससे हमें कैसा आचार्यों ने हमें बताया। प्रवचन सार की 7वीं गाथा देख लीजिए। उसकी 7वीं गाथा जब निकलती है वो गाथा, तो जो जो सम्यक दर्शन आई मीन साधक जीव को तय हो गया कि मैं पर से विभक्त हूँ और अपने में एकत्व हूँ, तो मेरी कंडीशन में यहाँ पर किस तरह से मैं करूँ? हमारे मिथ्यात्व मुझे मैं भी कोई भी वहां तो अस्थिरता का राग को छोड़ाने का भी आगे है। हाँ। मैं यहाँ एकत्व छोड़ दूं। मुझे कभी भी पुण्य का भाव अच्छा है, पाप का बुरा, ये सब पक्षपात में नहीं रहना। दो मध्यस्थ, वो दोनों आश्रय है, बंध के कारण है, ऐसा करके। तो वो अनुमान ज्ञान में होगा। पहले तो वही होगा ना, अनुमान में। पर अनुमान में देखिए, आप अभी सोच लीजिए, हमने कहीं कोई हिल स्टेशन के बारे में कहीं पढ़ा, कहीं सुना, तो वो कौन सा ज्ञान हुआ? प्रत्यक्ष से परोक्ष से? परोक्ष ज्ञान हुआ। उसमें इतना रस लगा कि कैसे ही करके वहां पहुंचना है, माने वो दृष्टांत के रूप में प्रत्यक्षपना हो जाएगा। तो अनुमान में भी हमें उनकी रुचि और कुछ नहीं लगता है, तो आगे कैसे बढ़े? तो कम से कम प्रथम पूर्वी काम में, अनुभव के पहले की प्रत्यक्ष पने की भूमिका में क्या होता है? अनुमान होता है। और अनुमान में भी इतना रस लगता है कि वहाँ ये पुरुषार्थ करते हैं तो अनुमान में जो विकल्प है वो छूट जाता है और ज्ञान अतीन्द्रिय होके प्रत्यक्ष अनुभव हो। लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं है, चलो थोड़ा है, नहीं सामान्य कि भाई थोड़ा स्वाध्याय कर लेते चल गए, ऐसा नहीं। कभी ऐसे गुरुदेसी ने कैसा तत्व घुटा के सब लिया है हमारे लिए कि एक शब्द, एक विषय आता है, गुरुदेसी तुरंत निकाल देते हैं ना कि गाथा में इस प्रकार है। तो आगे पेज नंबर 10 है। हाँ अभी 10, हाँ आ गया नीचे और भी, हाँ बस आखिर में आ गया। देखो चारित्र वो धर्म है, यहाँ भी आया चारित्र की व्याख्या आई ना हमारे। तो चारित्र वो क्या है? धर्म है। धर्म है माने क्या है? साम्य छे। धर्म है आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। और तो चारित्र में क्या आएगा? साम्य आया। और यहाँ क्या आया? मध्यस्थपना, न राग न द्वेष। और ये साम्य है वो मोक्षोभ विहीन जीव के निज परिणाम, जीव के परिणाम। मोक्षोभ नहीं है। मोह माने क्या? मोह में पक्षपात होता है, श्रद्धा की विपरीतता में और चारित्र में ऐसे ही। तो यहाँ मोह क्षोभ जहाँ नहीं है, ऐसे निश्चित स्थिरता रूप के साम्य परिणाम है, उसको यहाँ चारित्र रहते हो। चारित्र ही मेरा धर्म माने स्वभाव है सब। तो ये बात यहाँ हमें, तो ये भेद का अभ्यास से कैसा में हो, माध्यस्थ हो जा, उससे चारित्र। और चारित्र, यही चारित्र को बताने के लिए जैसे समय सार की 8वीं गाथा में किसकी चर्चा है? भाषा अनार्य विना। वो तो है दृष्टांत है, लेकिन क्या है बताना? स्वपर का भेद बताना है वहाँ पर। अंततः तो शुद्धात्मा बताना, आत्मा बताना है। सिर्फ आत्मा नॉइस कैंसलेशन है, मैंने खबर ना पड़े શું કહે છે તું? ओके गो अहेड। हाँ, तो ये मूलभूत 8वीं गाथा में क्या है? शिष्य को समझाना है। कौन बताना है? शुद्धात्मा, एकत्र। लेकिन आत्मा कहा तो उसके कुछ समझ में नहीं है, कुछ पल्ले नहीं पड़े। तो आचार्य देव ने क्या किया कि वही आत्मा को क्या कि भेद करके बताया। क्या भेद करके बताया? कि दर्शन नाम चारित्र को सदा प्राप्त हो, उसका नाम आत्मा। ऐसे ही यहाँ मूलभूत किसको बताना है? चारित्र बताना है।
क्योंकि ये पूरा नियमसार कैसा है, मोक्ष मार्ग नियमसार माने मोक्ष मार्ग है ना, और मोक्ष मार्ग में क्या आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो यह चारित्र के बताने के लिए, तो एक चारित्र है, तो चारित्र में ही के चारित्र के अलग अलग विकल्पों से रहित या काल की अपेक्षा से लेकर कि भूतकाल के दोष से रहित, उसको प्रतिक्रमण वर्तमान दोष के रहित आलोक, इस प्रकार उसको ही अंततः चारित्र को ही दृढ़ करने के लिए यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि हम अलग अलग अधिकार लेकर, पर अंततः किसको बताना है, चारित्र। और चारित्र क्या है, मोक्ष का मार्ग है। तो मोक्ष का मार्ग बताते हैं, साथ साथ में किसका आश्रय लेना वो विषय भी बताएंगे। तो इस प्रकार फिर से किसको बताएंगे, मार्ग। मार्ग में दो प्रकार क्या आया, दो प्रकार माने आश्रयभूत तत्व और उसका फल। ओके, आ गया ना, आश्रयभूत तत्व उसका तो आश्रयभूत तत्व भी यहाँ बता दिया इसे, मोक्ष मार्ग। आश्रयभूत तत्व शुद्धात्मा बताया, शुद्धात्मा जहाँ सभी कोई भी नहीं है, मेरे में मनुष्यपना के पर्याय नहीं है, राग द्वेष मोह नहीं है, फिर चार कसाई नहीं है, ये सभी बताया। तो विषय बताया, मार्ग, और फिर उसका फल, वो भी सभी बातें यहाँ बताया। तो चलो वो 82 नाम का कलश थोड़ा लेना, अनुवाद नहीं गाथा 82 उसका अनुवाद थोड़ा लेना। એક ક્વેશ્ચન છે, સામ્ય સામ્યનો અર્થ શું આમાં? साम्य એટલે समता भाव, ઓ સમતા, साम्य भाव समता भाव, जहाँ नहीं, इसलिए तो बताया ना, अनुकूलता में राग नहीं, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं, दो नहीं, सर्वे मायना पुद्गल एक स्वभाव। जैसे बहु उपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं, वंदे चक्री तथापि ના મળે મારું છે. तथापि थोड़ा थोड़ा मान हो, નહીં नहीं નહીં 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 मान, अरे इतना है, चक्रवर्ती आके वंदन करे तो कितना अच्छा लगता होगा। कुछ नहीं. तो इस प्रकार जो भी है ना, कोई भी मोह राग द्वेष नहीं, कोई भी कसाई नहीं, इससे परिणाम को क्या कहते हैं, साम्यपना कहते हैं। सम्यक श्रद्धा, श्रद्धा के साथ चारित्र की बात है। मध्यस्थता। चलो देखो अन्वयार्थ हम पढ़ते इसमें, ऐसा भेद अभ्यास होने पर ऐसा भेद अभ्यास होने से या होने पर क्या होता है, जीव मध्यस्थ होता है। मध्यस्थता माने कहीं राग द्वेष, अभी तक कैसा लेना है, एकत्व तो छूटता है, ये अस्थिरता का राग भी है, तो इसलिए उसको चारित्र होता है। और उस चारित्र को दृढ़ करने के लिए यहाँ में प्रतिक्रमण आदि, आदि माने अभी अधिकार जो है ना, वो सब मैं कहूँगा। तो ऐसा इस दशा का मूल कौन है कि भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान के लिए क्या बताया कि जो 5 गाथा में बताया कि मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ तो करता नहीं, कार्यता नहीं और अनुमोदक भी नहीं, इस प्रकार से लिया है। तो थोड़ा टीका भी पढ़ लेते हैं। पूर्वोक्त पंचरत्नों के स्वभित आया, ऐसा एक किसका अर्थ आया, 5 यह भेद आया था ना, यह भेद आया था ना, तो उसका साथ लिया कि वो कौन के, पूर्वोक्त पंचरत्नों से स्वभित अर्थ परिज्ञान, पदार्थों का ज्ञान के द्वारा पंचम गति की प्राप्ति हेतु ऐसे जीव का और कर्म पुद्गल का भेद अभ्यास। बस यहाँ हमें बोल है क्या, इसको भेद अभ्यास को ही क्या कहेंगे, भेद ज्ञान। भेद ज्ञान कहो, भेद विज्ञान कहो, भेद अभ्यास। हम भेद ज्ञान करते हैं कि नहीं, भेद अभ्यास करते हैं कि नहीं? हाँ, करते। हम अज्ञानी मिथ्या दृष्टि करते हैं, कभी करते हैं। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इस तरह से पर वस्तु में मैं भेद करता हूँ। देखिए, भेद करना है तो 2 पर के बीच में मत करना। 2 पर के बीच में यदि करेगा तो इसमें एक इष्टपना और दूसरे में अनिष्टपना होगा, राग द्वेष की उत्पत्ति होगी। यदि भेद करना है तो एक जाति में नहीं, भिन्न जाति में होता है, जड़ चेतन में होता है, स्वभाव विभाव में होता है, स्वपर में होता है। वो तो हम करते नहीं है,
किसमें करते हैं? दो पर के। एक घर मेरा है, एक घर मेरा नहीं है। अच्छा, तूने वेदनाम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे क्या तेरे हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। मेरा घर करके तुझे राग एकत्व हुआ, और पर गए उनके पीछे थोड़ा द्वेष, माने मेरा नहीं, ऐसा खेदभाव। અહીંયા कहते उससे कुछ काम नहीं चलने वाला है। અહીંયા तो स्वपर का होता है, स्वभाव विभाग का। तो ऐसे इसलिए दोनों दिया ना, जीव का और कर्म पुद्गल का, दो भिन्न जाति लिया ना, या एक एक कर्म में नहीं लिया, एक ही संयोग में नहीं लिया। ऐसा भेद अभ्यास होने पर, और एक भेद अभ्यास किया फर्स्ट, फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या आया? पहला स्टेज में क्या आया? भेद किया। अभी नेक्स्ट स्टेज में क्या आता है? उसमें ही जो मुमुक्षु सर्वदा संस्थित रहता है, उसी में माने भेद नाम की धारा में ही जो मुमुक्षु, हम तो मुमुक्षु है ही, मुमुक्षु है ना, यहाँ आप में नहीं होता है ना, जस्ट इंडिया में होता है ना मुमुक्षु मंडल, उनके क्या होते हैं? वो सदस्य होते हैं, मेंबर। तो ये सब है ना, नहीं इसमें क्या मुमुक्षु है? यहाँ बैठे भी हम मुमुक्षु है ना। मुमुक्षु का तो हाँ, मुमुक्षु कह सकते हैं। અહીંયા आचार्य देखे तू मुमुक्षु ही नहीं है। यदि तू मुमुक्षु हो तो चाहना तो संयोग की करता है, हर रोज किसकी रटन करता है? सही माने में मुमुक्षु साधक दस है, जीव है, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकट किया है। तू तो बातों में ही बोल रहे थे मोक्ष जाना है और परिणाम करते है भव मिले सर। हमारे परिणाम कौन से होते हैं? भव से रहित होने का, रागद्वेष रहित होने के परिणाम होते हैं, रागद्वेष रूप करते हैं, तो बंद हो ऐसा परिणाम करता है। तू बोलता है मुमुक्षु, अरे सम्यक दृष्टि से लेकर मुमुक्षु, तो जो मुमुक्षु सर्वदा संस्थित, सर्वदा का अर्थ लिया था, क्या है सर्वदा? संपूर्ण रीत से, काल सर्वदा, सर्वथा नहीं है, सर्वदा से निरंतर प्रणति रूप है। अभी तो चारित्र में ऐसा हो, इसका प्रयत्न चल रहा है। वेदनान की धारा तो हो गई सर्वदा, और संस्थित, इसमें ही सम्यक प्रकार से उपयोग स्थिर रहे। प्रणति तो है, उपयोग स्थिर रहे, तो वे क्या है? तो वे सतत भेद अभ्यास, सर्वदा का सतत भेद अभ्यास द्वारा मध्यस्थ होते हैं। मध्यस्थपना मुनिराज का कितने लेवल का होता है? 3 कसाय के अभाव के रूप के। हाँ, वही मध्यस्थ, और भी मध्यस्थपना, 3 कसाय का भाव की वितरागता है। इसके वजह से क्या होता है? अरे वहां कोई उपसर्ग करे कि चक्रवर्ती आके वंदन करे, ये मध्यस्थ है, ये उत्कृष्ट लेवल है। चाहे सो शेर आदि शरीर खाने को आ जाए और कोई हमारी वयावच करे, साय कोई बना प्रसंग, आहार मिले या ऋषभ देव को 6 महीना तो उन्हें निर्णय किया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाकी में उनको एक विकल्प कर आता होगा ना, अरे क्या नहीं, 1-2 दिन आप न दो, अभी को कहाँ चले गए वो सब? जन्म कल्याण मनाने देव सब आते थे, और अभी इतना ही ध्यान नहीं रखते ये श्रावण लोग कैसे है? कुछ नहीं, हाँ ऐसा विकल्प, चलो विकल्प और कुछ नहीं, किसी को कहा नहीं, लेकिन विकल्प आया होगा। चलो और भी आगे बढ़ते। तो जिस दिन इक्सु रस का जब ये आदान हुआ, उसी दिन उनको क्या लगा? वो अच्छा एट लास्ट नहीं, એવું नहीं, मध्यस्थ नहीं, हम कभी होते हैं ना, ट्रैवल करते बहुत गया था, चलो एट लास्ट हम पहुंच गए, अभी ऐसा संतुष्टि का भाव होगा? आपका नाम मध्यस्थपना है, ये मुनि दशा है। हम अपने कोई कल्पना से मान लेते हैं कि ऐसे नहीं। मुनिराज 2 प्रकार के होते हैं ना, एक पंचम काल के और चतुर्थ काल के होते हैं। ये भरत ऐरावत होते हैं, एक महाविदिक होते हैं, नहीं है तो ऐसा ये जो ये मध्यस्थ होते, तो वो सतत मध्यस्थ होते, और उस कारण से परम संयमी को देखो, ये मुनिराज परम संयमी है। श्रद्धा अपेक्षा से चतुर्थ में हुआ, पंचम में देश संयम हुआ, यहाँ पूरा परम संयम के को वास्तविक चारित्र होते हैं। यहाँ चारित्र माने मुनि दशा के योग चारित्र की चर्चा है। वेद अभ्यास किया तो उसमें सम्यक दर्शन तो हो गए आगे, और उसकी भी अधिकता अभ्यास करते तो कहाँ पहुंचते हैं? ये चारित्र, और ये चारित्र की अविचल स्थिति के हेतु से प्रतिक्रमण आदि निश्चय क्रिया कहने में आती है। उस चारित्र, कौन सा चारित्र?
परमात्म प्रतिक्रमण रूप जहाँ मध्यस्थपना हुआ, इष्ट अनिष्टपना छूट गया, जहाँ उसको ही प्रकट हुआ है, उसको ही दृढ़ करना है। अविचल चारित्र के अविचल प्रकट हुआ, उसको ही सदा टिकाए रखने के लिए ठीक हेतु से ये प्रतिक्रमण आदि जो बात। और एक क्या शब्द लिया, निश्चय क्रिया। निश्चय क्रिया माने क्या? अपने शरीर की क्रिया है, भाषा की क्रिया है, विकल्प है, तो क्या है? अपने भाव में स्थिर अपनी वितरागता रूप प्रणति, उसका नाम ही निश्चय क्रिया है। ये चेतन की, आत्मा की निर्मल वितरागी प्रणति का नाम है, तो निश्चय क्या है। और उसमें अतीत भूतकाल दोषों का परिहार अर्थ में प्रायश्चित कहने में आता है, वो प्रतिक्रमण है। जो इसमें अभी भूतकाल के दोषों जो को मूल कुंकनाचार्य देखा है ना, परिक्रमण आदि, इसमें प्रतिक्रमण का पहला अर्थ लेते हैं। प्रतिक्रमण में क्या है? भूतकाल के दोषों का परिहार। फिर से हार और परिहार, सब प्रकार से, सब प्रकार से। हार माने अभाव। फिर से ये समझना नहीं अभी यहाँ कोई नहीं, थोड़ा कम करे तो क्या, ऐसे नहीं। अरे पुरुषार्थ की इतनी तीव्रता हो को उसका क्या करना है? परिहार। परिहार के लिए प्रायश्चित करना वो प्रतिक्रमण है। और आदि शब्द से प्रत्याख्यान आदि का संभव, माने आदि शब्द में प्रत्याख्यान, आलोचना, वो सभी आवश्यक, प्रायश्चित वो सभी लेना। इस प्रकार से फिर से पूरा पंचम अधिकार क्या प्रारंभ किया? वियम सार माने मोक्ष का मार्ग कहने का। उसमें पहले कहां से प्रारंभ किया? परमार्थ प्रतिक्रमण से चला। उसमें पहले किया तो भेदनान कर। ये सब करने के सर्वप्रथम इसलिए 5 पहले गाथा में भेदनान करने। अभी कहते हैं उस भेदनान को ही अभी आगे बढ़ाते, उसका अभ्यास चालू कर। तो उस अभ्यास से क्या है? श्रद्धा में जैसे हो या समय, ऐसे ही अभी चारित्र में शुरुआत हो, उसकी और वृद्धि होगी। तो उसमें वो जो चारित्र की अभी क्या करना है? निरंतर धारा है। इसलिए इसमें भूतकाल के दोष के लिए प्रतिक्रमण है, वर्तमान के लिए आलोचना है, और भावी के लिए प्रत्याख्यान आदि सभी। उसका इस प्रकार हिंट दे दिया। ये प्रतिक्रमण के आगे दूसरे अधिकार, लेकिन थीम चालू रहेगा। चालू रहेगा कि वेद ज्ञान की अभी वृद्धि वृद्धि वृद्धि, माने उसका टीका। ये तो ये प्रकार से आगे विषय। Any questions? Anybody has it? Last chance. Anybody? Okay. सहजानंदी सुख स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई यही अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। 9 times नमो का मंत्र।
અનંતાનંદ સિદ્ધ પરમેષ્ઠી ભગવંતોનો જય હો. સુષભાદી મહાવીર પર્યંત ચતુર્વિંશી તીર્થંકર ભગવંતોનો જય હો. સિમંદરાદી 20 વિહરણમાં તીર્થંકર ભગવંતોનો જય હો. જીન મુખોદ્ભવા જીનવાણી માતનો જય હો. મહાવિદ્ય શ્રી સિમંદર સ્વામીના સંદેશા લાવનાર કુનકુન આચાર્ય દેવ આદિ આચાર્ય દેવનો જય હો. કુનકુન આચાર્ય રચિત પંચપરમાગમના રહસ્ય ખોલનાર ગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામીનો જય હો. પ્રસમપુરથી ભગવતી માતનો જય હો. ધન્ય એકાવતારી શ્રીમદ રાજચંદ્ર દેવનો જય હો. સનાતન પરમ સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય જયકાર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.